آج اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. وہ عنوان ہے ان اللہ مع الصابرین. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حاضرین، بڑی مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حاضرین، مسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ابو یحییٰ صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا دلکش ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب کیوں ہے؟ ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ یقیناً مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر پر مبنی ہوتا ہے. مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر پر مبنی ہوتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. پیارے نبی کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ خیر کا معاملہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، جو مومن ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر پیارے نبی اس کی تفصیل، اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مومن کا معاملہ خیر پر مبنی کیوں ہوتا ہے، اس کا ہر کام خیر پر کیوں ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اصابتہ سراء، جب ایک مومن کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، جب مومن کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی تحفہ ملتا ہے، شکر، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فکان خیرا لہ، لہذا انعامات پر، تحفوں پر، اچھی چیز پر جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں وہ معاملہ خیر پر مبنی ہو جاتا ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، جب مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب کسی مومن کو پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو ان مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے. تو حاضرین، دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا معاملہ بتایا کہ اگر اللہ کی جانب سے کوئی انعام، کوئی تحفہ ملتا ہے، کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، شکر ادا کرتا ہے. دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کرتا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا تو آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا اس عنوان پر ہم بحث کریں گے. آج کے اس عنوان میں جو دوسری بات پیارے نبی نے بیان فرمائی کہ اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. انشاءاللہ آج کے خطبے میں اسی عنوان پر ہم کچھ باتیں رکھیں گے. حاضرین، ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پیارے نبی نے معاملات میں اگر انسان کو تکلیف پہنچے، مصیبت آئے، آزمائشیں آئے تو مومن کی یہ علامت بتائی، مومن کی یہ نشانی بتائی کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے. مومن بندہ صبر کرتا ہے، کسی حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے اس حال میں وہ بندہ صبر سے کام لیتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ معاملہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے صبر کی تعلیم دی ہے، ہر حال میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے. حاضرین، یہ بات رکھیں، جتنا بڑا مقام انسان کو ملتا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری انسان کو ملتی ہے، اسے اتنا ہی زیادہ صبر کرنا چاہیے، اسے اتنا ہی زیادہ صبر کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ان من عظم الجزاء ما عظم البلاء. پیارے نبی کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے رتبے جو ملتے،
साथ, बड़ी बड़ी आजमाइशों के साथ। आप देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कौन नहीं जानता हजरत इब्राहिम को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम साल में एक मर्तबा किसी ना किसी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवियों, उनके बच्चों की सीरतें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। क्यों? अल्लाह ने ये मुकाम व मर्तबा उनको अता फरमाया। और ये मुकाम व मर्तबा उन्हें कैसे मिला? उनकी आजमाइशों की वजह से। जो आजमाइशें उन पर आई, जो मुसीबतें उन पर आई, जिस तरह से सब्र उन्होंने किया, उस सब्र की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मुकाम व मर्तबा उनको अता फरमाया। हाज़रीन, मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है कि इंसान अपनी बीवी को और अपने बच्चे को एक वैरान जंगल में अल्लाह के हुक्म पर ले जाकर छोड़ दे और अपने घर वापस आ जाए और अपने दिल में और अपने दिल पर ज़ब्त रखे, सब्र से काम ले। हालांकि वो जानता है कि वो वैराना है, वो जंगल है, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर सब्र करना ये मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा सब्र उन्होंने किया और इतनी आजमाइशें और इतनी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने मुकाम व मर्तबा अता फरमाया। और याद रखें, सब्र के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये तालीम दी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सब्र के बगैर ये जो जिम्मेदारी आप पर डाली गई, ये जो रिसालत और इसी तरह से नबूवत का जो मिशन आपको दिया गया, सब्र अगर आपके अंदर ना हो तो फिर इस मिशन को आप पूरा नहीं कर सकते, इस मिशन को आप पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ नबी, आप सब्र से काम ले, आप सब्र करें। कैसे सब्र करें? जैसे उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र किया। कौन थे उलुल अज़्म पैगंबर? हजरत इब्राहिम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये उलुल अज़्म पैगंबर हैं। इनकी जिंदगियां उठाकर देख ले, कैसी कैसी आजमाइशें इन पर आई, कैसी कैसी मुसीबतें इन पर आई, कैसे कैसे हालात से ये दो चार हुए, लेकिन सब्र के दामन को इन्होंने नहीं छोड़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते रहे। 950 साल तक उन्होंने सब्र से काम लिया, कभी वो मायूस नहीं हुए। और इसी तरह से आप देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी आजमाइशों में गुजरी, सब्र से उन्होंने काम लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी आप उठाकर देख ले, दुश्मन तो दुश्मन, उनके अपने कौम के लोगों ने कैसा कैसा सलूक उनके साथ किया, लेकिन हजरत मूसा ने सब्र से काम लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी आप उठाकर देखें, लोग दुश्मन बन गए, जानलेवा और इसी तरह से जान के पीछे पड़ गए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुल, ऐ नबी आप भी सब्र कीजिए जिस तरह से उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र किया। तो हाज़रीन, मालूम हुआ कि सब्र करना यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जब इंसान रखता है तो उसे चाहिए कि वो सब्र से काम ले, ज़ब्त से काम ले। मामलात में जल्दी करना या मामलात में मायूस हो जाना, याद रखें, एक मोमिन की अलामत नहीं है, एक मोमिन की पहचान नहीं है। मोमिन के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हालात जैसे भी हो अल्लाह से मदद तलब करो। मदद तलब करने का जरिया क्या हो? नमाज हो और सब्र हो। सब्र इंसान के अंदर होना चाहिए, तब अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है। हाज़रीन, मालूम हुआ कि सब्र तो करना है। अब हम देखें, उलमा ने सब्र की 3 किस्में बयान की हैं। सब्र की 3 किस्में बयान की हैं कि सब्र किन किन चीजों पर होना चाहिए, सब्र कैसे कैसे होना चाहिए, किन किन हालात में इंसान को सब्र करना चाहिए। तो आप याद रखें, सबसे पहली किस्म सब्र की अस्सब्रु अला ताआ है। अस्सब्रु अला ताआ यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी पर, हक पर कायम रहते हुए इंसान हक पर डट जाए, सब्र करे और इसी तरह से साबित कदम रहे, और जिस तरह की भी मुश्किलात आए, परेशानियां आए, उनका सामना करे। यह सब्र अला ताआ है, यह सब्र अला ताआ है। अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी पर इंसान जम जाए, साबित कदम हो जाए और इस तरह से अल्लाह के दीन से जुड़ जाए, अल्लाह के दीन पर साबित कदम हो जाए। हाज़रीन, मैं आपको बताऊं, खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा काबतुल्लाह की दीवार से लगकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के पास आते, आकर कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम दीन हक पर नहीं है? क्या हमारा दीन गालिब नहीं आएगा? आज हमारे साथ जो सुलूक हो रहा है, आज हमें मुश्किलात, परेशानियों से, तकलीफों से हम गुजर रहे, ये सरदारान कुरैश हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे। ये खब्बाब बिन अरत कौन है?
खब्बाब बिन अर्त कौन है? जिनको आग के शोलों पर लिटाया गया था। अल्लाह अकबर, ये खब्बाब बिन अर्त है। यहाँ कर कहते अल्लाह के रसूल, ये हजरत बिलाल हबशी है, इनको तपती रेत पर लिटाया जा रहा है, उनके सीने पर भारी पत्थर रखा जा रहा है, हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं, मुझे आग के अंगारों पर लिटाया जा रहा है। हम कब तक सब्र करें? क्या अल्लाह की मदद नहीं आएगी? क्या अल्लाह की मदद नहीं आएगी? हम अल्लाह के दीन पर कायम है। क्या दीन हक, क्या आपका लाया हुआ दीन हक पर नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें सुनते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता है। अल्लाह के नबी शदीद गुस्से में आ जाते। अल्लाह के नबी जो काबतुल्लाह की दीवार को टेका लगाए हुए थे, अल्लाह के नबी टेका छोड़ देते। हजरत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहते, अभी तुम पर मुसीबतें क्या आई? अभी तुम पर मुसीबतें क्या आई? अभी तुमने सब्र क्या किया? तुम पिछली उम्मतों का हाल देखो, पिछली उम्मतों के जो नबी गुजरे, उन पर कैसे कैसी मुश्किलात आई, उन पर कैसे कैसे हालात गुजरे। नबियों को आरे से उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते थे, गोश्त को लोहे की कंघियों से उनके गोश्त को छीला जाता था, और वो उस मामलात में सब्र करते थे। और तुम कहते हो कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुश्किलात आएंगी। जब तुम दीन हक पर कायम रहोगे तो मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेंगे, लोग तरह तरह का सलूक करेंगे, लेकिन अपने दीन पर कायम रहना, जमे रहना, ये मोमिनों की अलामत है, और यही सब्र है। ये सब्र है, याद रखें, अस्सब्रु अला ताअत, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और दीन हक पर साबित कदम रहना, ये सब्र अला ताअत है। इसकी मिसालें अगर हम देखें, एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं, फिरौन जो जालिम और जाबिर बादशाह था, जालिम और जाबिर बादशाह था, फिरौन का लफ्ज हमारे कानों से टकराता है, उसका जुल्म और सितम और इसी तरह से उसका जाबिराना सुलूक हमारी आंखों के सामने आ जाता है। हाज़रीन याद रखें, फिरौन की एक बेटी थी, उस बेटी की एक बांदी थी, जो उसकी बेटी को कंघी करने वाली, चोटी डालने वाली जो उसकी बांदी थी, वो उसकी बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी हाथ से छूटकर जमीन पर गिरती है, वो बांदी उस कंघी को उठाते हुए कहती है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहकर वो बांदी उस कंघी को उठाती है। फिरौन की बेटी उस बात को सुन लेती है और कहती है कि मेरे बाप का खाती है, मेरे बाप के महल में रहती है, और नाम अल्लाह का लेती है, और जाकर अपने बाप से फिरौन से शिकायत कर देती है। फिरौन से शिकायत कर देती है। फिरौन उस बांदी को बुलाता है, और उसके साथ कुछ बच्चे होते हैं, उन बच्चों को भी बुलाता है। फिरौन कहता है कि देखो, इस दिन से जिस दिन पर तुम कायम हो उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूंगा। वो औरत, वो खादिमा, वो बांदी कहती है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं इस दिन से पलटने वाली नहीं हूँ, मैं इस पर साबित कदम रहने वाली हूँ, चाहे मेरे साथ कुछ मामला हो जाए। उसके बाद फिरौन हुक्म देता है कि उसके बच्चों को लाया जाए, उसके बच्चों को लाया जाए। एक तेल की कढ़ाई, बहुत बड़ी कढ़ाई, और उसमें तेल डालकर तेल गर्म किया जाता है। उस औरत से पूछा जाता है कि देखो, अगर तुम इस दीन से ना फिरी, अगर तुम इसी दीन पर रही, तो फिर याद रखो, एक एक करके तुम्हारे इन बच्चों को उस गर्म तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। उसने कहा कि जो हो जाए, मैं इस दीन से फिरने वाली नहीं हूँ, मैं इस दीन से पलटने वाली नहीं हूँ। और उसके बाद क्या होता है, उसके 4 बच्चे होते, एक को लिया जाता है, गर्म तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है, माँ की आंखों के सामने उसके बच्चे के गोश्त, उसकी हड्डियां सब कुछ अलग हो गई। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक मंजर है। औरत के सामने इस तरह का सलूक किया गया। औरत से फिर पूछा जाता है, क्या दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो? वो कहती है कि नहीं, मैं इस दीन से फिरने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उसके बाद उसके दूसरे बच्चे को लिया जाता है, आग की कढ़ाई में, उस तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है, तीसरे बच्चे को डाल दिया गया। अब आखिरी बच्चा, मासूम सा बच्चा, दूध पीता बच्चा है, सीने से चिमटा हुआ बच्चा है, माँ का ईमान थोड़ा सा डगमगाने लगता है, तसल्जुल थोड़ा सा होता है। और उसके बाद याद रखिए क्या होता है, वो छाती से लगा हुआ बच्चा, वो दूध पीता बच्चा, वो अपनी माँ से कहता है, बात करता है, दूध पीता बच्चा। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बच्चे, 3 मौजज़े ऐसे दिखाए कि जो माँ की गोद में जिन्होंने बात की, उन्हीं में से एक ये भी बच्चा था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हक में जो करेगा वो बेहतर होगा। और उसके बाद वो माँ साबित कदम रहती है, वो माँ अपने दीन पर जमी रहती है। और उसके बाद उस बच्चे को भी डाल दिया जाता है, और उसके बाद उस माँ को भी तमाम के साथ यही सलूक कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। आप देखें, एक औरत जो कमजोर शुमार की जाती है, उसके ईमान की ताकत आप देखें, उसका सब्र आप देखें कि अल्लाह के दीन पर कैसे वो साबित कदम रहती है। आज हम अपने ईमान का जायजा लें कि क्या हम अपने दीन पर इस तरह
سے ثابت قدم ہے؟ کیا آج ہمارے دلوں میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ایسا صبر ہے؟ ہم اللہ کے احکام و فرامین کی تھوڑی سی تابعداری کرتے، اطاعت گزاری کرتے، اللہ کے دین پر ہم ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے، فلاں رشتہ دار ناراض ہو گئے، فلاں دوست ناراض ہو گئے، فلاں ایسا ہوا، فلاں ویسا ہوا، ہم اپنے عمل سے پھر گئے، ہم اپنے عمل کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں چاہے کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یاد رکھیں اپنے دین پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارے۔ یہی الصبر علی الطاعہ ہے، الصبر علی الطاعہ ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری پر صبر کرنا، جمے رہنا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں صبر کی ایک دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ، الصبر عن معصیت اللہ، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہنا، اللہ کی نافرمانی پر صبر کرنا۔ اس کی ہم مثال اگر دیکھنا چاہیں، وقت کم ہے، میں ایک مثال دے کر آگے بڑھوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے وہ گناہوں سے بچتے تھے، کیسے وہ گناہوں سے بچتے تھے۔ عین جوانی کا موقع ہے، عین جوانی کا موقع ہے، بادشاہ کے محل میں وہ زندگی گزارنے والے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازے بند کر کر گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، سارے اسباب مہیا ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو گناہ میں ملوث ہو جاتے، لیکن حضرت یوسف نے اپنے آپ کو گناہ سے روک کر رکھا، اپنے دل پر صبر سے، اور اسی طرح سے اپنے دل کو، اپنے جذبات کو انہوں نے صبر اور کنٹرول میں رکھا، ضبط میں رکھا۔ یہ صبر عن المعصیہ ہے، الصبر عن معصیت اللہ۔ گناہ کے کام، یقیناً انسان گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں کچھ کام دیکھتا ہے، گناہوں کے کام اس کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے، اس سے اس کا اثر لینے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو بندہ صبر کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر وہ صبر کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں، صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ، الصبر علی اقدار اللہ، یعنی کہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یقیناً بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں ہم پر آتی ہیں، اور جب مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ جو مصیبت آئے، جو تکلیف آئے، جو پریشانی آئے، میرے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ یہ ایک ایمان ہوتا ہے ایک مومن بندے کے سلسلے میں، اور جب مومن بندے کو یہ ایمان ہو کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر آزمائش اللہ کی جانب سے ہے، تو وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے۔ تو حاضرین یاد رکھیں، یہ صبر علی اقدار اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا۔ ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً صبر کی تعلیم دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا نمونہ بھی ہیں، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں صبر کا نمونہ پیش کرتے ہوئے آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، یعنی کہ جتنے بیٹے تھے سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ انہی میں سے ایک حضرت ابراہیم تھے، نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم، بچپن ہی میں وفات ہو گئی، اور اسی دن چاند گرہن یا سورج گرہن بھی لگا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم کی تدفین کے لیے آگے بڑھ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی روتے ہیں، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں غم ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہے، جو اللہ کو منظور ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کس کس طرح کے الفاظ لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، کس کس طرح کے الفاظ لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں اللہ کے سلسلے میں یا تقدیر کے سلسلے میں۔ فلاں ایسا کیوں ہوا، اس کے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، نوجوان تھا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اللہ اکبر، کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلوں سے رضامندی نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ کی جانب سے مصیبتیں آتی ہے، غم اور اسی طرح سے تکلیفیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ایسے حالات میں صبر کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے نبی کی زندگی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نرینہ اولاد تھی اللہ کی زندگی میں فوت ہو گئی، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال بھی نبی سے پہلے ہو گیا، بس ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ نبی کے انتقال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ بتائیں
अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजर रहे थे जो कब्र पर रो रही थी और इसी तरह से गम मना रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सब्र की तलकीन दी। उस औरत ने कहा कि तुम्हें क्या मालूम कि मेरा गम क्या है, तुम्हें क्या मालूम कि मेरा गम क्या है। उसने नहीं देखा कि कहने वाला कौन है। अल्लाह के नबी वहां से गुजर गए। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उस औरत से कहा कि तुम जानती हो कि तुमने किससे कहा? वो कहती कि नहीं जानती। वो अल्लाह के सहाबा कहते कि वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल। वो औरत दौड़ी दौड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैंने नहीं देखा कि आपने मुझसे कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो जब मुसीबत पहुंचे जब सब्र करना है। ये नहीं कि इंसान सारा गम मना ले, वावेला कर ले, सब कुछ कह ले, आखिर में ये कहे कि अब तो बस सब्र ही करना है, अब तो बस सब्र ही कर सकते। नहीं, ये सब्र नहीं है। मुसीबत पहुंची उसी वक्त सब्र करना है। ये कैसे? मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजता है एक मासूम से बच्चे की जान निकालने के लिए, रूह निकालने के लिए फरिश्तों को भेजता है और उसके बाद वो फरिश्ते मासूम से बच्चे की रूह को निकाल कर अल्लाह के पास ले जाते। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह निकाल ली? फरिश्ते कहते कि हाँ। अल्लाह तबारक व तआला सवाल करता है, क्या तुमने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े को उससे जुदा कर दिया? फरिश्ते कहते कि हाँ परवरदिगारा। अल्लाह तबारक व तआला सवाल करता है कि मेरे बंदे ने क्या कहा? मेरे बंदे ने क्या कहा? तुमने उसके जिगर के टुकड़े को उससे छीन लिया, उसके मासूम से बच्चे को तुमने उससे छीन लिया। मेरे बंदे ने क्या कहा? उसकी ज़बान पर क्या अल्फाज थे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब पूछता है अल्लाह तबारक व तआला, फरिश्ते कहते हामिदा का परवरदिगारा, उस बंदे ने तेरी तारीफ की, तेरी हम्द बयान की और उसने क्या किया? वस्तरजिया परवरदिगारा, उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का, उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का और उसने तेरी तारीफ की। अल्लाह तबारक व तआला सुनने के बाद कहता है, फरिश्तों गवाह रहो, इस बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो, इस बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखना कि हम्द का घर। अल्लाहु अकबर। याद रखिए, ये सब्र है, ये सब्र है, ये सब्र है। मासूम से बच्चे की वफात की खबर मिले और बंदा कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्लाह की तारीफ बयान करे। ना वावेला उसने मचाया, ना गम उसने किया, ना अफसोस उसने किया। अल्लाह के फैसले पर वो राजी हुआ, अल्लाह के फैसले पर वो राजी हुआ। अल्लाह कहता है कि जन्नत में इस बंदे के लिए घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखना। हाज़रीन, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। तो हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों पर राजी होना। मुसीबतें यकीनन आएंगी, हम इंसान हैं। पैगंबरों की जिंदगियां हम देखते हैं, कैसी कैसी मुसीबतें उन पर आए, कैसी कैसी परेशानियां उन पर आए। और याद रखें, आज हम ये कहते कि भाई फुला तो पैगंबर थे, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनके सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं था? क्या उनके जज्बात नहीं थे? क्या उनके एहसासात नहीं थे? क्या उनकी औलाद नहीं थी? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे? क्या वो भी तो इंसान ही थे? फिर हम जब इंसान हैं तो हम ये बात क्यों कहते कि भाई वो तो पैगंबर थे, हम वैसी जिंदगी कहाँ गुजार सकते? याद रखें, वैसी जिंदगी मतलूब है, वैसा सब्र मतलूब है, वैसा ईमान मतलूब है। अगर वैसा ईमान ना हो, वैसा सब्र हमारी जिंदगियों में ना हो, तो फिर हमने नबियों की जिंदगी से, उनके उसमें से हमने क्या फायदा उठाया? तो हाज़रीन, ये बात जरूरी है। आज मैंने आपके सामने सब्र के सिलसिले में कुछ बातें रखी कि सब्र कैसे कैसे होना चाहिए। हम अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहे, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करें, चाहे जो हो जाए हमें उस दीन पर, उस हक बात पर कायम रहना है, उस पर सब्र से डटे रहना है, जमे रहना। दूसरी बात ये, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। यकीनन बुराइयां, गुनाह अपनी तरफ खींचेंगे, माइल करेंगे, लेकिन अपने आप को रोक कर रखना, जब्त करना, ये सब्र है। और इसी तरह से सब्र की तीसरी किस्म अस्सब्रु अला अक़दारिल्लाह, यानी कि अल्लाह के फैसलों पर राजी होना और अल्लाह के फैसलों पर सब्र करना। मुसीबतों पर, तकलीफों पर, आजमाइशों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना और सब्र करते रहना, यही मोमिन की अलामत है, यही मोमिन की पहचान है। लिहाजा रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को जो बातें हमने कही, जो बातें हमने सुनी, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपनी जिंदगियों में सब्र से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम की मदद फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो परेशान हाल है, परवरदिगारा तो उनकी मदद फरमा। परवरदिगारा जो बेरोजगार हैं, उनकी रोजियों का इंतजाम
فرما, جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پروردگارہ جو رشتہ دار دوست احباب ہمارے اس دنیا سے گزر چکے تو ان کی مغفرت فرما, ان کی خطاؤں و لغزشوں سے درگزر فرما. پروردگارہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد